Assalamualaikum. This is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses. I am your biology teacher and the topic of this video is branches of biology. In this video, I will explain you branches of biology in detail, and the resource which I am using here is the textbook of biology for class 9 and 10. Let's review about the previous class. In the previous class, I have introduced you about your textbook and practical book. I have shown you paper pattern and some sample papers, and also discussed about marks distribution. I have explained you about short review of biology. Basically, what is biology? Do you remember what is biology? Basically, biology is the study of life. And also told you about why do we need to study biology. Branches of biology. Some important branches of biology common to botany and zoology are morphology, anatomy, histology, cytology or cell biology, physiology, ecology, embryology, taxonomy, genetics, paleontology, biochemistry, microbiology, and biotechnology. Morphology. Basically, the word morphology comes from the Greek word morph, which means form. This branch deals with the study of external structural characteristics of plants and animals. मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम किसी भी एनिमल और प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बाहर से आपको नज़र आ रहा है उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी में. किसी भी आप एनिमल को ले लें या किसी भी प्लांट को ले लें, जो आपको एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसकी स्टडी की जाती है मॉर्फोलॉजी में. एनाटमी. एना मीन्स अप, टोम मीन्स टू कट. It deals with the internal structures or organs of an organisms. In plants, it deals with the arrangement of different types of tissue in root, stem and leaf, etc. मॉर्फोलॉजी में मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, बट जब बात आती है एनाटॉमी की तो इसके अंदर हम बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं. इसमें देखिए इसका मतलब ही यही है टू कट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी किस में कर रहे होते हैं, एनाटॉमी में. और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो रूट, स्टेम और लीफ में जिस तरह से टिश्यूज़ अरेंज हुए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, उनको जो है वो स्टडी किया जाता है एनाटॉमी के अंदर. हिस्टोलॉजी. हिस्टोस मीन्स वेब और टिश्यूज़. GR means Greek, that it is a Greek word. It comes from a Greek word histos, which means web or tissues. It deals with the study of tissues of plants and animals under a microscope. अभी हमने डिस्कस किया कि एनाटॉमी में भी हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, बट उनकी अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं. बट अगर बात की जाए हिस्टोलॉजी की तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम एनिमल और प्लांट दोनों के टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं. बट here is one specification, which is that we are studying the tissues of plants and animals under a microscope. Yes, under a microscope. Cytology. Cytology come from a Greek word kaitos, which means hollow vessel or cell. The study of structure, function and composition of cell and cell organelles is called cytology or cell biology. Basically आप कह सकते हैं सेल की स्टडी, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल का कंपोजिशन जिस ब्रांच में स्टडी किया जा रहा है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है. और इसके अलावा इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं कि बेसिकली हम इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं. फिजियोलॉजी. Greek word physis,
which means nature. It is the study of functions of different parts of living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं उसकी स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी के अंदर. इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इकोलॉजी, Greek word oikos, which means home. It is the study of relationships of living organisms with each other and with their non-living environment. It is also called environmental biology. बेसिकली इकोलॉजी में हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? इकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है विद देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरेक्शन है, इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं इकोलॉजी के अंदर. इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आ रहा है विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. एम्ब्रायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी. Embryon, Greek word is embryon, which means embryo. It is the study of progressive developmental changes which occur after zygote formation up to an organism is formed. कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो बनना स्टार्ट होता है उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है, लाइक पहले जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. तो ये जो स्टेजेस आ रही होती हैं बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस कहलाती हैं. इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं. इसको हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. इसके अंदर आपके पास एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल जैसे हैन जो है वो एग ले करती है, उसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाती है और कुछ टाइम बाद उसमें से चिक निकलता है. लेकिन वही एग अगर आपके घर में आता है और आप लोग उसको ब्रेक करके जो है वो खा लेते हैं, तो जब आप ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर उस वक्त चिक मौजूद नहीं होता. बेसिकली उसके अंदर चिक की फॉर्मेशन नहीं हुई भी होती. अगर वो एग हैन के पास रहे तो आफ्टर सम चेंजेस, आफ्टर सम डेवलपमेंटल चेंजेस वो उस एग के अंदर चिक फॉर्म हो जाएगा. तो वो ये जो चेंजेस आ रही हैं इसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रायोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. टेक्सोनोमी, Greek word is taxes, arrangement or grouping, norms, laws related to naming. It deals with the description, identification, classification and scientific naming of living organisms according to their similarities and dissimilarities or differences. इसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है? इस ब्रांच के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस. ठीक है, कि इनके जो एनिमल्स सिमिलर्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए और जो डिफरेंट है उनका ग्रुप चेंज कर दिया जाए. बेसिकली टेक्सोनोमी बेस पे आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 मौजूद है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. तो ये जो बेसिकली डिवीजन है ये की जाती है टेक्सोनोमी में. जेनेटिक्स, ग्रीक वर्ड इज जेनेसिस, ऑरिजिन. It deals with the study of inheritance including transmission of hereditary characters from parents to their offspring. बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर आप क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स. हेरिडिटरी करेक्टर्स की किस चीज़ को कहते हैं? वो वाले करेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहे हैं. तो ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके अंदर जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन हो रहे हैं इसकी स्टडी की जाती है जेनेटिक्स के अंदर. पैलिएंटोलॉजी, ग्रीक वर्ड इज पैलियोस विच मीन्स एंशंट और ontos being organism. It is the study of animals and plants that lived in remote past and are now found as fossils in the rocks. It can be further divided into paleobotany, study of plant fossils, paleozoology, study of animal fossils.
बेसिकली किन एनिमल और प्लांट की स्टडी है जो बहुत पहले रहते थे, जिनकी जनरेशन आप कह सकते हैं अब मौजूद नहीं है, बट उनकी जो है वो कुछ पार्ट्स अक्सर रॉक्स वगैरह में दबे हुए या कहीं मिल जाते हैं, जिनको हम फॉसिल के तौर पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने दो तरह से डिवाइड किया गया है कि अगर प्लांट के बारे में बात की जा रही है तो वो पैलियोबॉटनी कहलाएगा, और अगर एनिमल के फॉसिल्स के बारे में बात की जा रही है तो वो पैलियोजोलॉजी कहलाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनको आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जैसे कि वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया। बायोकेमिस्ट्री, it deals with the chemistry and chemical aspect of the living system. बेसिकली इट इज बायोकेमिस्ट्री से आपको ये चीज़ जहन में आ रही होगी कि इट इज़ द लिंक बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। येस, एग्जैक्टली। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस आ रही है बॉडी के अंदर, वो चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी, it is the manipulation of living things, animal, plants, microorganisms for the welfare of mankind. Recently, methods of genetic engineering have brought about a revolution in this field. By using these techniques, not only yogurt, cheese, bread, insulin, antibiotics are being produced, but a number of diseases are cured. बायोटेक्नोलॉजी मतलब एडवांसमेंट की बात आ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही होती हैं, किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अभी एक रिसेंटली एक मेथड है लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और इस मेथड को यूज़ करते हुए योगर्ट, चीज़, ब्रेड, इंसुलिन और भी बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुई हैं जिससे बहुत सारी डिजीज़ जो है वो क्योर हो सकती हैं। I hope you understand all these 13 branches of biology. If you have any query, you can ask me in the comment. I will clear your problem. या any confusion, you have any confusion in any part, you can ask me in the comment. Definitely I will answer you. I will explain it to you again. If you have any query, you can ask to me many times if you want. So that's all for today. I hope you will understand the branches of biology. Till then, stay safe, stay home. Allah Hafiz.